Welcome class. We are discussing first year English of STB in textbook board lesson 1 Qaid Azam on 11th August 1947. पहले लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर का जो टेक्स्ट है कायद ऑन 11th अगस्त 1947 को डिस्कस करेंगे. कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना made presidential address. Presidential address means when you preside a session, you speak to the assembly. That is called presidential address. कहते हैं speech को, खिताब को. Made a presidential address on 11th August 1947 to the inaugural. Inaugural means opening. Inaugural session of Pakistan's first constituent assembly, first constituent assembly law-making body of Pakistan. That was the most consequential. Consequential means something which happened as the consequences. Yeah, important. Okay. Assertions means assertion means statements in the history of South Asia. This historic speech testifies means witnesses. ये जो historical speech है वो witness करती है, वो गवाही देती है the कायद्स vision of पाकिस्तान के कायद आज़म के पास पाकिस्तान का क्या विजन था. and of course it reminds us में याद दिलाती है about the teachings of the last holy Nabi Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamul Nabeen sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad, the Rasul of Allah, the last of the prophets, peace be upon him and upon his family and companions, that all men are equal in the eyes of Allah. ये स्टेटमेंट जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि सब लोग अल्लाह की नज़र में बराबर है. Here is an accept means extract piece of his memorable speech. Mr. President, ladies and gentlemen, I cordially means heartily, with heart. I cordially thank you with the utmost means very much, utmost sincerity for the honor you have conferred upon me. Conferred means bestowed. कायदे आज़म ने कह रहा है कि जो आपने मेरी इज्जत अफजाई की है उसके लिए मैं हार्टली आपका थैंकफुल हूँ. एंड आई सिंसियरली होप दैट विद योर सपोर्ट एंड योर कोऑपरेशन, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सपोर्ट और कोऑपरेशन की वजह से वी शैल मेक दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली एन एग्जाम्पल. हम इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली को एक मिसाल बनाएंगे. कैसा मिसाल बनाएंगे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एज एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, हम दुनिया के लिए इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली को मिसाल बनाएंगे. कायद आज़म ने कहा द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ गॉट टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म. कायद आज़म ने कह रहा है कि अब इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो काम है दे हैव गॉट टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस दे हैव टू परफॉर्म. उन्हें दो सबसे अहम काम करने. द फर्स्ट इज द वेरी onerous मीन्स डिफिकल्ट, onerous and responsible task of framing our future constitution of Pakistan. पहला काम जो हमें करना है वो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर का आइन बनाना है. एंड द सेकंड ऑफ functioning is a full and complete sovereign body. इंडिपेंडेंट, सॉवरन मीन्स इंडिपेंडेंट. दूसरा हमने कंप्लीट और सॉवरन इंडिपेंडेंट बॉडी तो फंक्शन करना एज अ फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की फेडरल लेजिस्लेचर फेडरल लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ पाकिस्तान. वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन इन अडॉप्टिंग अ प्रोविजनल constitution for the federal legislature of Pakistan. We know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering this unprecedented cyclonic revolution which brought about the plan of creating two independent sovereign dominions in this subcontinent. अब कायद आज़म कह रहा है कि ना फ़कत मैं बल्कि पूरी दुनिया, ना फ़कत हम बल्कि पूरी दुनिया जो है इस सब कॉन्टिनेंट के दो हिस्सों में दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो बनी उस पर परेशान है, वॉन्डर करें. दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट, माइटी मीन्स पावरफुल, दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट मीन्स रेजिडेंट्स, रहाइश पजीर लोग, हैज़ बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान विच इज़ टाइटैनिक, unknown and unparalleled.
सब कॉन्टिनेंट को ऐसे प्लान दिया गया जो बहुत बड़ा था, टाइटैनिक मीन्स वेरी ह्यूज, अननोन था और अनपैरेलल था, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। Dealing with our first function, the first and foremost thing that I would like to emphasize is this. Remember that you are now a sovereign legislative body. पहला काम जो मैं emphasize करना स्ट्रेस करना चाहता हूँ, जोर देना चाहता हूँ, वो कि अब आप sovereign independent legislative body है and you have got all the powers, आपके पास सारे powers हैं. It therefore places upon you the greatest responsibility. अगर आपके पास पावर्स हैं तो आपके पास सिंसियर सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज टू हाउ यू शुड टेक योर डिसीजन, कि आप अपने फैसले कैसे लेते हैं. द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सो दैट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ इट्स सब्जेक्ट आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट. सबसे पहली जो ड्यूटी है वो हमारी ये है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें ताकि लोगों की ज़िंदगी, उनकी प्रॉपर्टी और उनके रिलीजियस बिलीफ जो है, सब्जेक्ट्स लोगों को कहते हैं, वो फुली प्रोटेक्टेड हो. किसने प्रोटेक्ट करने हैं? स्टेट ने प्रोटेक्ट करने हैं. द सेकेंड थिंग दैट अकर्स टू मी इज दिस. वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम व्हिच इंडिया इज सफरिंग इज ब्राइबरी एंड करप्शन. उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जिससे इंडिया सफ़र करेगी वो ब्राइबरी, रिश्वत और करप्शन. दैट रियली इज़ अ पॉइजन, वो जहर की तरह है. वी मस्ट पुट दैट डाउन विद एन आयरन हैंड. हमें इसको सख्ती से निपटना चाहिए. एंड आई होप दैट यू विल टेक एन एडिक्वेट कहते हैं मुनासिब को. यू विल टेक एडिक्वेट मेजर्स मीन्स इकदामात as soon as it is possible for this assembly to do so. जैसे इस असेंबली के लिए मुमकिन है मुनासिब इक़दामात करें इन सब चीज़ों के लिए. ब्लैक मार्केटिंग इज़ अनदर कर्स कहते हैं लानत को. कायदे आज़म कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग एक दूसरी कर्स है. वेल आई नो दैट ब्लैक मार्केटर्स आर फ्रीक्वेंटली कॉट एंड पनिश्ड. उनको फ्रीक्वेंटली कॉट पकड़ा भी जा रहा है, पनिश भी किया जा रहा है. नाउ दैट यू हैव टू टैकल दिस मॉन्स्टर बला को कहते हैं, which today is a colossal huge crime against the society in our distressed condition. हमारी इस distressed condition में ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला है, हमें इससे निपटना चाहिए. I think they ought to be very severely punished. उन्हें सख्ती से सज़ा दी जाए because they undermine the entire system of control and regulation of foodstuffs and essential commodities and the wholesale establishment. क्योंकि वो हमारे सारे सिस्टम को अंडरमाइन करते हैं और एस्टैब्लिशन, भूख और बदहाली. होलसेल मीन्स अ ग्रेट क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एस्टैब्लिशन का सबब, भूख का सबब बनते हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज अ लेगेसी which has been passed on to us. एक ऐसी लेगेसी जो हमें पास की गई, along with many other things good and bad, has arrived this great evil, the evil of nepotism and jobbery. nepotism, सिफारिश और jobbery की जो evil है ये भी हमें विरसे में मिले. This evil must be crushed relentlessly. इस evil को ख़त्म किया जाए. I want to make it quite clear that I shall not never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. मैं किसी भी सूरत में नेपोटिज्म को, सिफारिश को जो मुझ पे की जाए उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा. Now if we want to make this great state of Pakistan happy एंड प्रॉस्परस कहते हैं खुशहाल को. अगर हम इस पाकिस्तान के अजीम कौम को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं, वी शुड होली एंड सोलली कंसंट्रेट ऑन द वेल बीइंग ऑफ द पीपल. हमें मुकम्मल तौर पे लोगों की फलाह, लोगों की बहबूद पे कंसंट्रेट करना चाहिए. एंड स्पेशली ऑफ द मासेस एंड द पुअर, आम लोगों को और गरीबों की ज़िंदगी के लिए. इफ़ यू विल वर्क इन कोऑपरेशन फॉरगेटिंग द पास्ट, अगर आप कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे, माजी को भुला देंगे. बरिंग द हैचेस, दुश्मनियों को भुलाएंगे. बरी द हैचेस मीन्स दुश्मनी भुलाना. यू आर बाउंड टू सक्सीड, कोई भी आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता. इफ़ यू चेंज योर पास्ट एंड वर्क टुगेदर इन द स्पिरिट that every one of you, no matter of what community, color, caste, creed he or she belongs, is first, second and last citizen of this state with equal rights and privileges and obligations. हम में से हर शख्स, चाहे वो किसी भी ज़ात, रंग, नस्ल या मज़हब से ताल्लुक़ क्यों न रखता हो, इसी रियासत का
शहरी है। We should begin to work in that spirit, and in course of time, all these angularities of the majority and minority communities. No power can hold another nation in subjection. Therefore, we must learn a lesson from this. कोई भी ताकत किसी कौम को गुलामी में नहीं रख सकती, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। You are free, आप आज़ाद हो। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप अपनी मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हो। यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क, मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद हो। टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान में किसी भी इबादत की जगह पे जाने के लिए आज़ाद हो। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, तुम किसी भी मज़हब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक़ क्यों न रखते हो, दैट इज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ स्टेट, उसमें रियासत का कोई बिजनेस नहीं। We are starting in the days where there is no discrimination, no distinction between one community and another, and no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are citizens and equal citizens of one state. आज हम उन दिनों से स्टार्ट करें जहाँ पे कोई फ़र्क, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। किसी भी कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन कास्ट और क्रीड के बीच में नहीं होगा। हम इस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ पाकिस्तान का आगाज़ कर रहे हैं कि हम सब सिटीजन्स हैं और इक्वल सिटीजन्स हैं एक रियासत के। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। एंड थैंक यू अगेन फॉर द ऑनर यू हैव डन टू मी। इस इज़्ज़त अफजाई के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज, prejudice or ill will. My guiding principles will be जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी। मेरे गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे? इंसाफ होगा और इम्पार्शलिटी होगी। एंड आई एम श्योर दैट विथ योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. आपकी सपोर्ट एंड कोऑपरेशन की वजह से मैं देखता हूँ पाकिस्तान दुनिया की अजीम अक़वाम में से एक होगा।